زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جاؤ اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لے بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کے لا ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ حافظ محمد رضوان صاحب بہت شکریہ، بہت خوبصورت نعت، اور خواہش کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، آج ایک اور روزہ اپنی تکمیل کی جانب ہے اور جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ ہے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف کیے ہوئے ہیں، اور چونکہ کل طاق رات کا بھی اہتمام تھا تو بہت سارے لوگوں نے امید ہے کہ عبادات بھی کی ہوں گی اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اپنی کوشش ضرور کی ہوگی، اور اللہ رب العزت سے ہمیں ہر وقت امید ہے کہ وہ ہمیں ہر وقت بخشنے والا ہے، بلکہ یقین ہے کہ وہ سب سے بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ خیر چونکہ آج بھی خیر رمضان کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تعارف ضروری ہے۔ میں ہوں عمران حسن اور میں ہوں ارملہ حسن۔ 23واں روزہ ہے آج، اور امید کرتے ہیں رمضان المبارک کا آخری عشرہ آپ کا بہترین گزرا ہوگا۔ آپ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور جہنم کے آگ سے نجات کے لیے دعا کر رہے ہوں گے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے ہوں گے۔ ہم اس ٹرانسمیشن میں آج کا بھی ہمارا امپورٹنٹ بہت ایشو ہونے والا ہے۔ اگر ہم دین اسلام کی بات کریں تو دراصل اللہ کی مکمل اطاعت کا نام ہے۔ اسلامی شریعت کا مقصد انسان کی فلاح و بہبود ہے۔ اسلام زندگی کے جہاں ہم بات کرتے ہیں تمام مسائل میں رہنمائی فرماتا ہے۔ اسلام میں نکاح کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، اور دین اسلام نے نکاح کے متعلق جو بیان کیا ہے وہ نہایت جامع اور بے نظیر ہے۔ بالکل، اور اسی حوالے سے ہم نے بات بھی کرنی ہے، اور اس سے پہلے کہ ہم مزید موضوع کی جانب بڑھیں میں مہمانوں کا تعارف آپ سے کرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے علامہ عمران بشیر صاحب آج دوبارہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، کچھ عرصہ اسٹوڈیو سے غیر حاضر رہے، پروگرام میں تو موجود رہے، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے کہ کراچی کی گرمی نے زیادہ تنگ نہیں کیا ہوگا، چلے خیر بخیر واپس آ گئے، وہاں بھی موجود تھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے واپس ہمیں آپ کو یہاں پہ دیکھ کر اور اسٹوڈیو میں لا کر۔ وقار احمد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اینا نیازی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ مہمانان تو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج ایک بہت ہی خاص مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں۔ جب ہم اسٹوڈیوز میں آئیں گے تو آپ کی ملاقات ان سے ہوگی۔ آج ہمایوں جمشید صاحب ہمارے ساتھ اب سے کچھ دیر کے بعد موجود ہوں گے، ان سے ہم کوشش کریں گے کہ بڑی اہم بات بھی ہے، اور مزید ان کی آمد سے کیا برکت ہوتی ہے یہ تو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن یقینی طور پہ ہمیں جنید جمشید بھائی کی یاد تو ڈیفینیٹلی آنے والی ہے۔ بالکل، ان کا ایک اسپیسیفک سیگمنٹ ہے دین کی بات، اور اس میں وہ دین اسلام کے متعلق ہمیں آج کے موضوع کے حوالے سے کچھ بتائیں گے، لیکن ہم ان سے ہی جانیں گے، تھوڑا سا ہم سرپرائز رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ امجد ثاقب صاحب بھی ہمیں جوائن کرنے والے ہیں، بالکل اخوت کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ آج کا شو بہت ہی انشاءاللہ بڑا پروڈکٹیو ہونے والا ہے، کوشش کریں گے جتنا بہتر ہو سکے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کچھ نکاح کے حوالے سے جو آپ نے موضوع آج کا شروع کیا تھا۔ اسلام نے نکاح کو انسانی بقا اور تحفظ کے لیے ضروری بتایا ہے، اور اگر نکاح کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کو احساس بندگی اور شعور زندگی کے لیے ایک عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے ضروری سمجھا کہ آج اس کی فضیلت، معاشرتی اور روحانی ثمرات کے حوالے سے بات کریں اور ہماری معاشرتی ذمہ داریوں
बुराइयों की भी बात करें कि क्यों हम निकाह को इतना मुश्किल किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सोशल कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। इसी हवाले से हमारे मेहमानान चूँकि मौजूद हैं, तो मैं मौलाना से सबसे पहले शुरू कर लेता हूँ, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं और फिर हम प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मौलाना, निकाह की अफादियत तो हम आम उम्मी तौर पर भी ज़िंदगी में बात करते रहते हैं, लेकिन मेरा इस वक्त सबसे अहम जो कंसर्न है वो ये है कि हम माशरती ज़िम्मेदारियों में या सो कॉल्ड माशरती कदरें जो हमने अपने लिए बना ली हैं, उसमें ऐसे जकड़े जा रहे हैं कि निकाह एक मुश्किल से मुश्किल अमल होता जा रहा है और हम इससे बचना चाहते हैं। हमारी यूथ इससे बचना चाहती है, हम नहीं जाना चाहते इसकी तरफ। इसकी बुनियादी वजह क्या है और इसके साथ साथ इसकी अफादियत और फजीलत क्या है, ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। इमरान भाई, अगर निकाह का लफ्ज़ी तर्जमा अगर हम समझ लें तो हमारे घरों के सारे मसाइल हल हो जाए। मसला ये है कि हमने दीन से अपने को इतना दूर कर लिया। लफ्ज़ कुरान है ना, कुरान के अंदर क्या है इसको तो छोड़ दें, कुरान का लफ्ज़ी तर्जमा है जिसे बार बार पढ़ा जाए। हमने ये भी नहीं सीखा कि कुरान का लफ्ज़ी तर्जमा क्या है। ऐसे ही निकाह का लफ्ज़ी तर्जमा 4 हमें मिलते हैं लुगत के अंदर, कि निकाह कहते हैं 2 जानों का एक हो जाना, कि 2 जाने ना रहें, एक जान। उसकी अरबी के अंदर, लुगत के अंदर हमें जो तशरीह मिलती है कि 2 सायादार दरख्तों का आपस में ऐसे मिल जाना कि घना साया बन जाए, इसे निकाह कहते हैं अरबी में। या उस नींद को निकाह कहते हैं अरबी के अंदर, कि जो इंसान की आंखों में समाए और उसकी थकावट दूर कर दे, उसकी थकन दूर कर दे। तीसरे नंबर पे निकाह अरबी में उस पानी को कहते हैं कि जो अल्लाह की तरफ से खेती बाड़ी पे नाजिल होता है और वहाँ से आला दर्जे की ज़राअत की पैदावार होती है, तो इसको अरबी में ठीक है। चलें, चूँकि हमारी लाइव ट्रांसमिशन है और हमने आपको इससे पहले बताया भी था कि हुमायूं जमशेद साहब हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ बुराजमान हो जाइए, तशरीफ़ रखिए। हमारे साथ हुमायूं जमशेद साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, हम बहुत ज़्यादा खुश आमदीद भी इनको कहते हैं। और जैसा कि आपके आने से पहले हुमायूं भी हम यही कह रहे थे कि हमें एक ज़ारी बात है, जिक्र जुड़ा है साथ जुनैद भाई का, तो हमें एहसास होता है कि जब भी आप जैसी शख्सियत हमारे साथ हो तो ऐसा लगता है कि वो भी हमारे बीच कहीं मौजूद ही हैं। खैर, ये बातें होती रहेंगी। सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लगा आके, कैसा महसूस हो रहा है हमारे पास हमारे एक्सप्रेसो का हिस्सा? यार, आई थिंक 4 साल में सिंस जुनैद इज लेफ्ट, आई हैव नेवर बीन टू एनी चैनल अदर देन ARY रमज़ान। और उसके एक रीज़न ये भी है कि जब मैं कभी भी रमज़ान के सेट पे आता हूँ ना, तो एक बड़ी मेमोरीज और एक नॉस्टैल्जिया सा होता है, इसलिए मैं अवॉइड करता था। लेकिन आज आपके चैनल पे आया, इस चैनल से मेरी मेमोरीज तो कोई नहीं है, तो एक तरह से तो मैं सुकून में हूँ। लेकिन यह है कि बहुत बाबरकत महफिल होती है जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए। बहुत बाबरकत महफिल होती है जहाँ पर दावत का काम किया जाए। और बेसिकली जुनैद का भी सारा, अगर आप उसका शान रमज़ान अगर आपने देखा हो कभी, तो आप देखें कि उसका सारा जो उसके पीछे उसका मोटिव था वो भी यही था कि अच्छी बात किसी तरह लोगों तक पहुंचा दी जाए। देखिए, आजकल इतनी भाग दौड़ की लाइफ है, आजकल लोगों का टाइम नहीं है। आप देखें, अगर आप किसी को वीडियो मैसेज भेजें, वो 30 सेकंड ज़्यादा है, कोई देखता भी नहीं, टाइम नहीं लोगों को। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का इतना एहसान है हमारे साथ कि रमज़ान के महीना एक ऐसा आता है कि जिसमें अल्लाह ताला सब काम जो है ना ठहरा देते हैं, रोक देते हैं और आपको 30 दिन देते हैं, जा 30 दिन में जितना तू मेरे से करीब आने की कोशिश कर ले। वाह वाह, बेशक। तो ये क्यों इमरान ऐसे ही, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बड़ा आज अच्छा लगा। चले, तो थोड़ी हमें अपनी रमज़ान की रूटीन भी बता दीजिए। रमज़ान में चूँकि हमारे उमूमी मामलात चेंज हो जाते हैं, उठने के, सोने के, जागने के, तो क्या मामूलात क्या है आपके रमज़ान में? यार, रमज़ान के साथ एक और चीज़ अटैच्ड है, वो है कोरोना, प्री कोरोना एंड पोस्ट कोरोना। असल में जब जुनैद का इंतकाल हुआ तो मेरे काफ़ी मामलात थे चल रहे थे। मैं था भी मुल्क से बाहर। जुनैद के इंतकाल के बाद पाकिस्तान आया, उसके बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो फैली हुई थीं। मेरे जो नेफ्यूज़ हैं माशाल्लाह अब तो बड़े हो गए, छोटे थे, तो एक तो वो सारी मसरूफियात थीं। तो मुझे बड़ों ने कहा कि जुनैद के बहुत सारे काम हैं अदर देन द बिजनेस साइड जो चल रहे हैं, उनको उनकी थोड़ी सरपरस्ती करनी है। तो इनिशियली तो मैं बहुत, मेरे लिए मुश्किल काम था, बिकॉज
बिकॉज ऑफ द रीज़न कि मैं कहता था मेरे अपने कामों के लिए टाइम नहीं निकलता, तो ये किस तरह से होगा। तो मेरे बड़ों ने कहा कि नहीं, नियत करो, नियत में इखलास डालो, ये नियत डालो कि अल्लाह को राज़ी करना है, अल्लाह ज़िंदगी में और वक्त में बरकत दे देगी। तो अब देख लीजिए 4 साल हो गए हैं, जो काफ़ी फैले हुए काम हैं। अब प्री कोरोना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा थी। बिल्कुल। हाँ, चैरिटी के कामों के लिए बहुत ट्रैवलिंग थी। तो पाकिस्तान में या घर में टाइम कम ही गुजरता था, 10 दिन गुजरे फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए। पोस्ट कोरोना अब ज़्यादा चीज़ें ऑनलाइन। आपके प्रोग्राम के लिए भी मैं सोचा था स्काइप पे कर लूँ, कम ही गए। अच्छा क्योंकि अब देखिए ये ऑनलाइन का एक सारा हाँ अपनाना पड़ेगा somehow आने वाले वक्त आ गया। Yes. तो रमज़ान में थोड़ी ब्रेक लगती है। मैं तो कॉन्शियसली रमज़ान में आई ट्राई टू चेंज माई रूटीन, और मैं वो काम करना चाहता हूँ जिससे रमज़ान का मुझे फ़ायदा मिलता रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान इज़ अ चिल्ड मंथ। ज़्यादा रिलैक्सिंग होता है आपके लिए? यार रिलैक्सिंग होता भी है, नहीं भी होता, बट द पॉइंट इज़ कि आपके जो डेली रूटीन के आप जो 365 दिन बाकी 11 महीने काम करते हैं ना, वो रूटीन थोड़ा चेंज करना चाहिए। चेंज इज गुड समटाइम्स। अभी हम चूंकि आपका एक प्रॉपर सेगमेंट भी है दीन की बात के हवाले से, हम आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे, लेकिन मौलाना साहब दोबारा आपकी जानिब आएंगे। हमने कहा कि अहमद के हवाले से बात कर रहे थे, आप अपनी बात को वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। निकाह का लफ्जी तर्जमा अगर हम समझ लें तो हमारे घरों से लड़ाइयाँ वैसे ख़त्म हो जाएंगी। निकाह कहते हैं 2 जानों का एक जान हो जाना, और निकाह अरबी में उस नींद को कहते हैं जो इंसान की थकन दूर करे। निकाह अरबी में उन 2 दरख्तों के साए को कहते हैं जो आपस में मिले हों। निकाह उस पानी को कहते हैं जो ज़राअत में आए और वहाँ से खेती बाड़ी पैदा हो। कुरान पाक ने एक दूसरे को, मियाँ बीवी को लिबास भी कहा, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। लिबास के अंदर 3 खूबियाँ होती हैं। पहली चीज़ ये होती है इंसान के लिबास उसके सबसे ज़्यादा करीब होता है। तो मियाँ बीवी वो हैं कि उनसे बढ़कर कोई और करीब ना हो। जहाँ पर तीसरा मामला आया नहीं, तबाही शुरू होगी। दूसरे नंबर पे लिबास का ये फ़ायदा होता है कि इंसान की जो कमियां होती हैं उसको छुपाता है। तो मियाँ बीवी वो हैं, कुरान ये कहता है, जो एक दूसरे की कमियों को छुपाएं। कोई भी गलती हो जाए, पर्दा। तीसरे नंबर पे लिबास का फ़ायदा ये होता है कि इंसान की इज़्ज़त का ज़रिया बनता है। तो मियाँ बीवी वो हैं जो एक दूसरे की इज़्ज़त का ज़रिया। लेकिन आपने यहाँ पे कहा कि निकाह जो ही आता है तो घर में झगड़े खत्म हो जाते हैं, लेकिन जब निकाह एक से ज़्यादा बार घर में आता है, जी, दूसरा या तीसरा निकाह आता है जी, तो उससे आजकल के माशरे में झगड़े बढ़ जाते हैं। और बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे घरों में यही तो मामला है, यही तो झगड़ा है। दूसरी शादी के झगड़े हैं। इवन हमारे इक़्तिदार के ऐवानों में इस पे बहस हुई है कि जी होना चाहिए, इजाज़त लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। इस पे ज़रा जो कॉम्प्लिकेशन है उस पर देखिए, हमारा एक दोस्त बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देता था कि जितनी मौला थे रोला ही रोला। ये मसला नहीं है कि दूसरे निकाह से लड़ाई शुरू होती है। जहाँ लड़ाई होनी है वहाँ एक में भी लड़ाई हो रही है। आपने देखा होगा कि लतीफ़ा सुनने कि हर जगह अहलिया लिखा जाता है, मर्द के लिए अहल नहीं लिखा जाता, क्योंकि मियाँ जो होता है वो नाहल ही होता है। तो बहरहाल गुजारा ये है कि जहाँ पर खौफ खुदा होगा, वहाँ पर एक हो या 4 हो, वहाँ कोई लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई नहीं। और जहाँ खौफ खुदा नहीं होगा, इसलिए आप खुतबा निकाह उठा के देखें तो 5 मरतबा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकवे का जिक्र करते थे। बिल्कुल। तकवा किसे कहते हैं कि एक दूसरे की खामियों को ना देखो, खूबियों को देखो। मैं आपको एक बात को, इमरान आपने ऐसे करना है, हमायूं भाई आपने ऐसे करना है, समझ आ गई? हाँ जी आ गई। अरमला आपने ऐसे, फिर दोबारा, फिर से 5 मरतबा खुतबा निकाह में तकवा कि मियाँ बीवी की कमियों को नहीं देखना। तो ये तो कमी है ही नहीं, ये तो खूबी है। मौलाना साहब, इसमें एक्सेप्टेबिलिटी का एक बड़ा इशू है ना। अगर हम सोशल नॉर्म्स की बात करते हैं, हम लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। दो कि हमारे दीन में इजाज़त है, लेकिन स्टिल अगर हम आजकल अपने माशरे में इर्द-गिर्द देखें कि अगर कोई कोशिश भी करता है तो हम उस पर बहुत हमारी हटदर्मी है। जैसे पर्दे को एक्सेप्ट नहीं करते, दाढ़ी को एक्सेप्ट नहीं करते, नमाजों को एक्सेप्ट नहीं करते, रोजे को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे वही सही है। ठीक, हम कई चीजें हैं दीन की कि जिसको हम एक्सेप्ट, लेकिन इसमें हो रहा है एक बहरहाल फैक्टर तो है ना, ये जो कॉम्प्लिकेशन है। मैं जरा वकार भाई को भी शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। वकार भाई, जो कॉम्प्लिकेशन है सारे प्रोसेस के अंदर, आपने इस पे, मैंने भी इनफैक्ट हम लिखते भी हैं सोशल मीडिया पे, और अक्सर हम आपस में भी इस बात पे डिबेट भी कर रहे होते हैं कि इसको मुश्किल कर दिया क्या है। उसके अलावा आप कोई भी गैर इखलाकी, गैर कानूनी काम करना, गैर शरई काम करना चाहें, उसके लिए राहें हमारे मुआशरे में मगरबी मुआशरों की तरह ज़्यादा आसान है बनिस्बत के। और उसकी वजह ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तरफ से मसला है। अगर आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, उसकी फैमिली की तरफ से एतराज़ात है, स्टेटस के मसाइल हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? इससे क्या हम वाकई मज़ीद
गिराव की तरफ जा रहे हैं, गिरावट की तरफ जा रहे हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। मैरिज जो है वो बेसिकली बेसिक इंस्टीट्यूशन है पूरी सोसाइटी का, और जो भी तालीमी हवाले से पिसा हुआ तबका, यानी तालीमी हवाले से जो इतना तरक्की याफ्ता मुआशरा नहीं होता, तो वो अमूमन शनाख्त के बहरान का शिकार होता है। वो शनाख्त का बहरान हसब नसब हो सकता है, वो शनाख्त का बहरान स्टेटस को जिस तरह आपने बात की है उसमें हो सकता है, और ये तमाम चीज़ें उस इंस्टीट्यूशन पे असरअंदाज हो रही हैं। हसब नसब का भी मामला और सारा को मैं आपको बिल्कुल एक डिफरेंट इंटरेस्टिंग पहलू से आपको बताऊं कि आपको 120 बिलियन गैलेक्सीज हैं, और उसके अंदर हमारी एक गैलेक्सी है ये मिल्की वे, और उसके अंदर फिर एक सोलर सिस्टम है, और उसके अंदर एक बेनाम सा एक नुक्ता है, उसके अंदर एक ऐसी मखलूक रहती है जिसका ब्रेन बहुत कम्प्लेक्स है, जो कि जिसकी वजह से वो अहम हो जाती है। लेकिन अगेन आप देखें कि वो स्पीशी जो कि बहुत अहम है और बहुत ही कम्प्लेक्स दिमाग की मालिक है, जो काम करने पे आए तो बहुत बड़े बड़े काम करती है, लेकिन जब दूसरी तरफ आए तो एक बेसिक मैरिज इंस्टीट्यूट का एक उसकी बेसिक नीड्स में है ये चीज़, तो उस बेसिक नीड को पूरा करने के लिए वो ये समझती है कि नहीं वो LCD भी होनी चाहिए, तो एक फ्रिज भी होना चाहिए, तो एक फलाम भी होना चाहिए, गाड़ी हो जाए तो बेहतर है, गाड़ी भी हो जाए तो बेहतर है, प्लॉट भी हो जाए तो आपने बेटी को ही देना है। अब इमेजिन कीजिए कि वो जो स्पीशी है जिसको हम ह्यूमन कह रहे हैं, वो एक सोशल एग्रीमेंट को इन ऐसी मादी चीज़ों के साथ कर रही है जो कि अगर वो ये आज की जो चीज़ें अहम है, आज की जहेज़ के वाले से जो अहम है, आज से 15-20 साल देखिएगा तो आपको ये एक कोई कचरा नुमा चीज़ नजर आएगी। आज से 20 साल पहले जो था वो आपको देखें, जो कुछ भी आज 40 साल पहले जो चीज़ें जहेज़ में दी जाती थी, आज आपकी नज़र में वो मादी हवाले से कोई उसकी वक़्त नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपने तमाम रिलेशंस तबाह कर दिए, या अपने रिलेशन बनाने में कितना उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि क्योंकि किसी के पास मतलब वो नहीं था तो नहीं कर पाए। हमारी भाई आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इसमें, चूंकि हम सब पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तानी हैं, लेकिन आपका भी और हमारा भी थोड़ा बहुत चूंकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की कि एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि बुनियाद है, एक ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जिसको निकाह कहते हैं। इसमें स्टेट का क्या रोल बनता है? ये जितनी मुश्किलात पैदा हो गई हैं और स्टेटस की जो चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं, इसमें स्टेट का क्या रोल आप समझते हैं जो वो प्ले कर सकती है तो इसको आसान? देखो स्टेट, मैं अपना एक छोटा सा ओपिनियन देता हूँ। स्टेट के रोल से पहले हमें अपना इनफरादी रोल देखना ज़रूरी है। देखो ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं और ये सब बातें हमें समझ में भी आती हैं, लेकिन कोई चीज़ इंसान की नफ्स के ख़िलाफ़ जब उसको डालते ना, उसको अडॉप्ट करते करते टाइम लगता है। तो ये बाकी हमारे लिए गाइडेंस ज़रूर है। सब्र का एक एलिमेंट है। देखो आइडियल मैच किसी को नहीं मिलता, ये मैं तुम्हें लाइफ की एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ। और मैं जब दुनिया भर में ट्रैवल करता हूँ ना, और तो वहाँ मेरे पास बहुत सारे आते हैं बंदे और मुझसे ये इस तरह के इश्यूज डिस्कस करते हैं और मुझे बताता है। मैं उसमें मेरे ख्याल है कि मैं एक भी बंदा ऐसा नहीं निकाल सकता जो कहे जी मेरा आइडियल मैच मिल गया। कोई आइडियल मैच, ठीक है। आपने एक दूसरे के साथ एक दूसरे की गुड्स और बैड्स, अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें को देखकर चलना है। अगर तो आप ये समझें कि इसकी जो अच्छाइयाँ हैं ना, वो इसकी बुराइयों को डोमिनेट करती हैं। बुरी चीज़ें तो होंगी, कंप्लीट ज़ात तो आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने बनाई कभी नहीं, तो फिर तो आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करें। लेकिन अगर आप ये समझते हैं बिल्कुल नहीं चल सकता, हमारे दोनों में बहुत डिफरेंस है, बहुत कॉन्ट्रास्ट है, अच्छे बुरे की बात नहीं है। देखिए मैं अच्छा भी हो सकता हूँ और मैं आपसे डिफरेंट भी हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो फिर उस सूरत में मैं समझता हूँ कि एमिकेबली इसको ख़त्म करना चाहिए। एक चीज़, ठीक, देखिए जब हम माशरे की बात करते हैं ना, स्टेट की बात तो मैं बाद में करूँगा, स्टेट में भी माशरे में से ही लोग आते हैं ना। हमारे माशरे के अंदर जो है दूसरे निकाह को या तीसरे निकाह को बुरा समझा जाता है। अब हालांकि दीन प्रमोट करता है। अब इस माशरे को आप ओवरनाइट बदल नहीं सकते, इट विल टेक टाइम। तो अगर इट विल टेक टाइम तो आप में ज़बरदस्ती कर नहीं सकते। आप, मैंने जैसे कहा ना, सब्र का दामन ना छोड़ें, सब्र से चलें, कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलें। एट दिस पॉइंट इन टाइम आई थिंक इस इशू में स्टेट इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकता। ठीक है, वो इसलिए नहीं हो सकता कि स्टेट भी, देखो स्टेट में भी जो लोग बैठे ना, हम ही है ना, हम ही सारे वहाँ बैठे हैं। एक पूरा एक कहते हैं ना एनेबलिंग ग्राउंड बनाना पड़ेगा, एक जहन साजी करनी पड़ेगी। उस जहन साजी के बाद हम इस स्टेज के ऊपर, ये कौन करेगा? वालिदैन, असातिज़ा? यार ये माहौल करता है, देखो, और उसमें वालिदैन का भी रोल है, उसमें असातिज़ा का भी रोल है, उसमें इंडिविजुअल लोगों का भी रोल है। तो देखो आजकल अवेयरनेस का ज़माना है। अवेयरनेस से क्या होता है, एक मॉडर्नाइजेशन, एक मोबिलाइजेशन होती है।
लोगों में सब्र ख़त्म हो गया, बर्दाश्त ख़त्म हो गया। अब उनको कौन ये समझाए कि ये जो सब्र बर्दाश्त जो ख़त्म हो गया है, ये दिस इज़ नॉट द राइट वे टू मूव, ये एक बड़ा टेम्पररी फेज़ है, कौन समझाएगा? सही। आपके साथिज़ा, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो खुद ही ट्रेन नहीं होते, उन्हें खुद ही इस बात का शऊर नहीं होता। ठीक हो गया जी। इस हवाले से हम और भी बात करेंगे, निकाह के हवाले से हम बात करते हैं। हमारा आज का मौजू भी है, हुमायूं जमशेद साहब हैं, मौलाना इमरान बशीर हैं, वकार अहमद मलिक हैं, और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान। खैर रमज़ान में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके साथ हम मौजूद हैं। आप खैर का सिलसिला शुरू हुआ है और ये शुरू हुआ तो पहली रमज़ान से इनफेक्ट, और कोशिश कर रहे हैं कि ये सिलसिला जारी रहे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम कुछ निकाह की अफादियत के हवाले से बात कर रहे थे, मुआशरे के अंदर इसका क्या असर है और इसके क्या फ़वाइद हो सकते हैं। बातचीत हमारी जारी है। हुमायूं जमशेद साहब, मौलाना इमरान बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अब हम जाएंगे हिना न्याजी की जानिब, जो कि हिना गोल्ड किचन में पहुंच चुके हैं। हिना, क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं बना रही हूँ एप्पल सिनेमन चिया पुडिंग, जो बहुत सिंपल है। इसके मैं पहले इंग्रेडिएंट्स बता दूंगी। इसके लिए हमें चाहिए होंगे कैरामलाइज्ड एप्पल्स चाहिए होंगे, प्लेन बिस्किट्स, बेकरी बिस्किट्स आप कोई भी ले सकते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स भी ले सकते हैं अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं। ब्राउन शुगर हम ले लेंगे और चिया सोक्ड इन मिल्क, ये हमारे पास यहाँ पर है। आप इसको किसी बोल में भी बना सकते हैं और ग्लास में भी बना सकते हैं। मैं इसको ग्लास में बनाऊंगी। सबसे पहले डिपेंडिंग आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें बेस में आप इसके प्लेन बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं और आप ये भी ऐड कर सकते हैं चिया सीड्स जो हमने सोक करके रखे हुए हैं मिल्क में। मिल्क जो है ये बहुत ही न्यूट्रिशियस है, ये इफ्तार के टाइम भी आप खा सकते हैं और सहरी में भी। कैरामलाइज्ड जो एप्पल्स हैं मैं इनका बता देती हूँ कि किस तरह से बनाए हैं। बटर आप लेंगे एक पैन में, उसमें आप एप्पल्स डालेंगे उनको पील करके, और उसमें थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डालेंगे तो बहुत अच्छा रिच फ्लेवर आएगा। आप सिनेमन स्टिक्स भी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे ग्लास लेंगे, ग्लास में हम सबसे पहले ऐड करेंगे चिया सीड्स, या आप मिल्क, आप इसको वाटर में भी सोक कर सकते हैं, लो फैट मिल्क में भी कर सकते हैं। मैंने इसको फुल फैट मिल्क में ही किया है क्योंकि कोई मैं खास डाइट कॉन्शियस हूँ नहीं। ठीक हो गया। उसके बाद हम इसमें बेकरी बिस्किट्स हैं यहाँ पे हमारे पास, बेकरी बिस्किट्स हम ऐड कर देंगे। आपको रेसिपी बता रही है, साथ साथ रेसिपी कार्ड भी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि जो जो चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं डिज़र्ट पे। अच्छा हिना, आप क्या ऐड कर रही हैं? इसमें मैं प्लेन बिस्किट्स ऐड कर रही हूँ, बेकरी बिस्किट्स आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। आप इसमें इवन चॉकलेट बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं, बिकॉज बच्चों को चॉकलेट कैरेमल फ्लेवर बहुत पसंद होता है। अच्छा, इसको हम फिल कर लेंगे अच्छे से बिस्किट से। और यहाँ पर जो कैरेमलाइज्ड एप्पल्स हैं, ये आप पाइनएप्पल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। फ्रूट आप अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो एप्पल्स हैं वो बहुत फिलिंग होते हैं क्योंकि उनमें वाटर और फाइबर होता है, तो इससे आपको भूख नहीं लगेगी पूरा दिन। एंड दे कीप यू फिल्ड फॉर लॉन्ग टाइम। एनर्जी लेवल भी जो है वो आपका मेंटेन्ड इससे रहेगा और ये हेल्दी भी होंगे। इसको हम अच्छे से फिल, इसको भी आप चिल्ड सर्व कर सकते हैं, कोशिश करें। अच्छा, मुझे इसको सहरी में भी खा सकते हैं। ये सहरी के लिए ही है गालिबन। ये एग्जैक्टली अगर आप खाना चाहते हैं तो ये सहरी के लिए बहुत अच्छा एक फिलिंग, हाँ जी, एक मील है। अगर आप सिर्फ ये खा लो और इसके साथ कोई चाय पी लो तो आई थिंक आपकी जो जितनी भी कैलोरीज हैं, रेडी नाउ हो गया। थोड़ा सा इसमें हम ऐड करेंगे ब्राउन शुगर एंड पे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्रंची पसंद है। ऑल्दो जो कैरामलाइज्ड ये थे एप्पल्स थे, और टॉप हम इसको कर देंगे क्रीम से। ओके। और थोड़ी सी यहाँ पे चॉकलेट है मेरे पास, इसमें हम हिना कसर नहीं छोड़ी लोगों को मोटा करने में ही सारी रमजान में सब ये बना रही हूँ इमरान। इट्स अ कैलोरी बॉम्ब आई मस्ट से। नहीं, इसमें मैं बताती हूँ, हमने इसलिए प्लेन बिस्किट्स लिए थे, एप्पल्स लिए थे, और ये टॉपिंग है इमरान। चलें ये कैमरे पे आप देख सकते हैं जी, जबरदस्त सी हमारी जो रेसिपी आज की होती है। कैलोरी कंसर्न लोगों के लिए मैं दोबारा से, इमरान जैसा कि कह रहे थे थोड़ा सा इसमें कैलोरी ज्यादा है, ये जो है टॉपिंग है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप इमरान की तरह हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप इसको स्किप करें। चलें जी, थैंक यू वेरी मच हिना, बहुत शुक्रिया। आपने आज की रेसिपी मुलाहिजा कीजिए, आपको रेसिपी कार्ड भी हमने दिखा दिया और आई होप कि आपने सीख लिया होगा कैसे बनाना है। हमें अमजद साकिब साहब ज्वाइन कर चुके हैं। हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे मुकम्मल तारुफ के साथ इनको वेलकम भी करेंगे और इनसे बात भी करेंगे। और उससे पहले हमने चूंकि बड़ा अहम मौजू भी है उस पर भी बात होगी। जरा ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद आपने
मुझे लासानी का दूध स्या प्लस मलठी चाहिए। नहीं, मुझे सिर्फ लासानी का दूध स्या प्लस मलठी चाहिए। लासानी दूध स्या प्लस मलठी। लासानी का डायमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डायमैक्सो। इनके खानों के लिए मेरी चॉइस है KNN's मुज़ेरे सेहत अज्जा से पाक चिकन। वैसे अपने खानों में हम औरतें एक चीज जरूर मिलाती हैं, प्यार है ना? सेफ एंड हेल्दी चिकन KNN's। इफ्तार टाइम की रौनक और बढ़े जब कनौर केचप और चिली गार्लिक 20 रुपए कम में मिले, यानी अब बचत और मजा दोनों ज्यादा। तो एंजॉय करें हर इफ्तार कनौर सॉसेस के साथ। इस एक ड्रॉप की पावर तुम क्या जानो मिस्टर। चिकनाई का सफाया करता है लेमन मैक्स लिक्विड का एक ड्रॉप। ढेरों बर्तन धोता है ये एक ड्रॉप, इसीलिए 3 गुना ज्यादा चलता है ये एक ड्रॉप। एक ड्रॉप चले नॉन स्टॉप। मुझे लासानी का दूध स्या प्लस मलठी चाहिए। नहीं, मुझे सिर्फ लासानी का दूध स्या प्लस मलठी चाहिए। लासानी दूध स्या प्लस मलठी। लासानी का डायमैक्सो गैस, बदहजमी और निजाम हजम की इस्लाह के लिए ऑरेंज टेस्ट के साथ लासानी का डायमैक्सो। प्यारे अल्लाह मियाँ, अब्बा को जब से नजर आना बंद हुआ उनका काम छूट गया, मेरे स्कूल से भी नाम कट गया। कल हम पैर भूखे सोए। अम्मी रात भर आपसे दुआ करती हैं, अब मुझे कोई खिलौने नहीं चाहिए। अब्बा, बस अब्बा की आंखें रोशन कर दें। इस रमजान 2.5 करोड़ आंखें आपकी ज़कात की मुंतज़िर हैं। LRBT। अब इनकी सहरी है डिलाइम, यानी कम वक्त में भरपूर ग़िज़ाइयत और सेहर का अफ्तार, तवानाई बरकरार। KNN's डिलाइन। इंशाल्लाह इस पिच पे पाकिस्तान मैच जीतेगा। अब्बू पिच बन गई? जी मेरा बेटा। देखना अब्बू, एक दिन में आपके बनाए पिच पे पाकिस्तान के लिए विकेट लूंगा। बीमार पड़ोगे तो क्रिकेट कैसे खेलोगे? बड़े ख्वाबों को चाहिए बड़ी हिफाजत। नया लाइफ बॉय केयर एंड प्रोटेक्ट जो दे जरासीम से 100% यकीनी हिफाजत प्लस मॉइस्चराइजर्स के साथ स्किन केयर। बड़े ख्वाब बड़ी हिफाजत, नया लाइफ बॉय। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे निकाह के हवाले से, लेकिन अब हमारे साथ हमारे सेट पे एक नए मेहमान भी आ चुके हैं, उनका भी हम तारुफ करवाएंगे। कोविड की जहां हम बात करते हैं और लॉकडाउन की वजह से जहां हम बात करें गरीब और दिहाड़ीदार अफराद के साथ साथ कारोबारी तबका भी शदीद मुश्किलात का सामना कर रहा है और इस वक्त मुख्तलिफ फलाही तंजीमें इस मुश्किल घड़ी में बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। और इन्हीं फलाही तंजीमों में अगर बात करें तो हमेशा की तरह अखुवत फाउंडेशन बढ़ चढ़ कर काम कर रही है और लाखों अफराद की मदद कर रही है। अखुवत फाउंडेशन किस तरह से काम कर रही है, उनको क्या चैलेंजेस है, किस किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे आज। और हमारे साथ मौजूद है अखुवत फाउंडेशन के रूह रवाज जनाब अमजद साकिब साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। कैसे हैं आप, खैरियत से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। द प्लेयर इज़ एंटायरली माइन। थैंक यू सो मच। आप इतनी अहम शख्सियत हैं समाजी काम के हवाले से, और मैं उस दिन ये आपका एक प्रोग्राम मैं देख रहा था किसी चैनल पे, और आपने एक नई शक्ल दे दी है सारे सिलसिले को। और कुछ ऐसे अजहान को जो समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, उसको आपने पॉसिबल करके दिखाया है, खासतौर पे व्हेन वी टॉक अबाउट द लोन्स और एक सोशल एक जो सपोर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ओवरऑल अपनी रूटीन के हवाले से बताइए, आपका रमज़ान अखुवत के साथ कैसा गुजरा है, क्या मसरूफियात हैं? जी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहन बरकत का महीना है, रहमत का महीना है, अल्लाह ताला की रहमतों के ख़जाने खुलते हैं। अब ये तो हम पर इन्हसार है ना कि हम उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्या हम सिर्फ अपनी ज़ात के अंदर रहते हुए इबादत करते हैं, या हम फिर दूसरों की खिदमत भी करते हैं, मदद भी करते हैं, ईसार और कुर्बानी से भी काम लेते हैं। दरअसल मैं जब भी सोचता हूँ तो रोज़ा का फ़लसफ़ा भूखा प्यासा रहना नहीं है। ये दरअसल इस एहसास को जन्म देता है कि किसी और पर भूख प्यास कैसे बीतती है। बिल्कुल। तो ये एहसास जब पैदा होता है, अल्लाह ताला ने हमें भूखा रखने का, अल्लाह को क्या फ़ायदा। उसने तो हमें इस एहसास से गुजारना है कि देखो एक मज़दूर चिलचिलाती हुई धूप में, एक किसान बाहर अपनी ज़मीनों पर एक मज़दूर क्या करता है। तो ये एहसास हम भूल जाते हैं। तो कम से कम 1 महीना हो जब हमें ये एहसास हो, फिर आपको
دینے کی لذت کا پتہ چلتا ہے، پھر آپ کو ایثار اور قربانی کے معنی آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم خوراک کو، غذا کو ضائع کیسے کرتے ہیں۔ ایک روٹی کو بھی ہم دیکھیں بچا لیں تو اس سے ایک بچے کا پیٹ پل سکتا ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک غیر معمولی یہ اس کو عبادت ہے، یہ روزہ جس کو کہتے ہیں، یہ سیلف پیوریفیکیشن ہے، یہ روح کی پیوریفیکیشن ہے، یہ احساس، نئے احساس کو جنم دینے کی ایک طریقہ کار ہے، پریکٹس ہے، ایک طرح پریکٹس ہے۔ تو اسی حوالے سے پھر ہم بھی اپنے کاموں کو آرگنائز کرتے ہیں کہ اور زیادہ خدمت کر سکیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کے۔ تو آپ ماشاءاللہ سر جو آپ کام کر رہے ہیں نیا چہرہ دیا، میں نے کوئی چہرہ نہیں دیا، ہم نے تو صرف ایک درخشاں روایت کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کو دہرانے کی حقیر سی کوشش کی ہے، اور اس روایت کی چمک ہے کہ لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو گئیں کہ بھئی مواخات کیا ہے، ایک شخص کا ہاتھ پکڑ لے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آدھا پاکستان غریب ہے، آدھا غریب نہیں ہے، تو یہ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں تو کون سی یہ سوچنے کی حد تک تو امجد صاحب بڑا متاثر کن خیال لگتا ہے، لیکن کرنے کی حد تک، اور پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہیں، ہم دنیا داری کو چھوڑ دیں، ہمارے بہت سے معاملات ہیں جس میں ہر کوئی آگے دوسرے پہ تنقید کرتا ہے اور آپ آگے بڑھ نہیں سکتے، تو اس میں یہ فکر کیسے لیا آپ نے، یا کب آپ کو لگا کہ اب یہ ہونا شروع ہو گیا ہے؟ دیکھیں آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ سوچنا اور چیز ہے، عمل اور چیز ہے۔ آئیڈیلزم جو ہوتا ہے نا، یہ زندگی سے کی جانے والی ضد کا نام ہے، اور زندگی ضروری نہیں ہے ضد کو پورا کرے، لیکن آئیڈیلزم کے بغیر انسان زندہ رہ نہیں سکتا۔ بہت خوبصورت بات۔ تو سوچ ہے وہی عمل کا جو پہلا قدم بنتی ہے، اور الحمدللہ ہمارے سامنے مثال ہے، 1450 برس قبل اگر آدھے لوگوں کو اپنا کر ایک خوبصورت سماج کو تخلیق کر سکتے تھے۔ دیکھیں اصول، اسلام ہمیں نظام نہیں دیتا، ہمیں اصول دیتا ہے۔ نظام ہر عہد کے جو مروجہ سیاسی، سماجی، معاشی ریالٹیز ہیں ان کے مطابق بنائے جاتے ہیں۔ تو وہ اصول دے دیا کہ یہ آدھے لوگوں کو اپنا لیں، آدھے امیر ہیں، آدھے امیر نہیں ہیں۔ پاکستان میں بھی براڈلی میں نے جیسے عرض کیا، تو ہم نے آج سے 20 برس پہلے ایک خاتون سے مواخات کا کام کیا، پہلا اس کے ساتھ رشتہ جوڑا، اور آج 44 لاکھ کے قرضے اور یہ اتنے خاندانوں سے مواخات ہو گئی۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ اس سے ان کی غربت ختم ہو گئی، لیکن کم از کم انہیں یہ احساس تو ملا کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، معاشرے کے کچھ لوگ ہمارے ساتھی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں کا اس سے تعارف نہیں ہے، میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا بتا دیجیے کہ قوت کیسے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مواخات مدینہ ہماری ایک جیسے سمجھیں کہ سرچشمہ فیض ہے۔ اب اس کی عملی صورت آج کے عہد میں یہ ہے کہ ایک مواخات فنڈ ہو جس میں لوگ اپنے طرف سے عطیات جمع کروائیں، ایک ادارہ ہو جو اس فنڈ کا کسٹوڈین ہو، اور اس فنڈ میں سے 10 20 30 40 ہزار روپے کی رقم، چھوٹی رقم، کسی ایسے شخص کو قرض حسن کے طور پر دی جائے جو کام کرنا چاہتا ہے۔ آپ دیکھیں باہر جو ریڑھی والا ہے نا آپ کے دفتر کے باہر، وہ 10,000 کی ریڑھی خریدتا ہے، 10,000 کا پھل خریدتا ہے، اور شام کو 20,000 کی انویسٹمنٹ سے 1000 1500 روپے کما کے لے کے جاتا ہے۔ تو ہم کیا اس کو 500 1000 یا 100 روپے دے کر خوش ہو جاتے ہیں؟ کیوں نہ اس کو روزگار کا بندوبست کر دیں۔ تو یہ مواخات فنڈ ہے، صدقات کا فنڈ ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ضرورت مند لوگوں کے پاس۔ اس میں ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں سود نہیں ہے، جتنی رقم آپ نے دینی ہے وہ آپ نے واپس لے لینی ہے۔ اور پھر ایک اور خوبی یہ ہے کہ ہم جس کو قرض دیتے ہیں اسے کہتے ہیں دیکھو بھائی آج تم لینے والے ہو، تمہارے اندر تو ایک دینے والا بیٹھا ہوا ہے، بالکل تمہیں جب تمہاری ضرورت پوری ہو جائے تو تم بھی اپنے جیسا کسی آدمی کو ڈھونڈو اور اس کے ساتھ مواخات کر لو۔ تو وہ آپ حیران ہو گئے کہ ہم نے جو 44 لاکھ قرضے دیے، یہ تقریباً 30 لاکھ خاندانوں کو ملے ہیں۔ ماشاءاللہ زبردست۔ یہ 2 کروڑ افراد بنتے ہیں۔ اچھا اس میں سے 60-70% لوگ اب دینے والے بن گئے۔ وہ کہتے ہیں 1 روپیہ ہم سے لے لو شام کو 1000 میں سے، تو وہ 1 روپیہ ملتے کروڑوں روپے بن جاتے ہیں جب لاکھوں لوگ دے رہے ہوں۔ ہم تو یہ اب آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مبارک دن ہے، مبارک محفل، ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان میں 20 کروڑ لوگ ہیں نا جی، 22 کروڑ لوگ ہیں، اگر ہر شخص 1 روپیہ روز کا بتائے نا تو یہ آپ دیکھیں کہ آدھے لوگ بھی بچائیں، میں کہتا ہوں تو یہ 3-4 ارب روپیہ بنتا ہے مہینے کا، بے شک، اور سال کا 100 ارب روپیہ بن سکتا ہے۔ اور چند سال آپ یہ صدقہ دے دیں اور صدقات فنڈ بنا دیں ہر شہر میں اپنا تو غربت عجائب گھروں میں نظر آئے گی آپ کو۔ جی چھوٹی سی میں اپریشیٹ کرنے کے لیے 700-800 سالوں
पिछले हम अपनी जब हिस्ट्री देखते हैं तो हम देखते हैं कि हम एक चीज़ में बड़े कमज़ोर वाक़या हुए हैं पिछले 700-800 सालों में, वो है इदारा बनाने में। और अफराद हमारे यहाँ बहुत बड़े कदावर पैदा हुए हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस, फिर इंस्टीट्यूशन दो तरह के थे। एक ये था कि आपने इमीडिएट ज़रूरत पूरी की किसी की, और एक था कि किसी को पाँव पे उसको खड़ा करना। ये दोनों डिफरेंट अप्रोचेज हैं। ये दूसरी वाली अप्रोच जो है ये हमारे यहाँ बहुत कम, यानी अभी बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस साहब हैं, वो है, वो बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है, और पाकिस्तान और पूरे रीजन की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी जो है, अभी आप इमेजिन करें 2 करोड़ अफराद तो जो जिन्होंने उस पर किया, तो वो जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का तस्वुर है वो नहीं है, वो कमजोर है। ये आपने बहुत दुरुस्त बात की है जी कि इनफरादी काविशें आपको नज़र आती हैं, लेकिन वो इनफरादी काविशें जब किसी अदारे में ढलती हैं ना तो फिर उसको पायदार एक सूरत मिलती है। तो काश हम अदारे बनाएं, लोगों के ऊपर इन्हसार नहीं किया जा सकता, अदारों के ऊपर किया जा सकता है। हम शहर में एक मस्जिद एक अदारा है जी, अब हर मस्जिद में अगर आप कर्ज हसन का एक निज़ाम बना दें, सिर्फ लाहौर में 20,000 मसाजिद हैं। मेरा यही सवाल था आपसे कि हम फिर इस इतने अच्छे इतने सक्सेसफुल मॉडल को कौमी सतह पे अब तक क्यों नहीं लेके आ सके? आपसे ये पहले भी पूछा गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वक्त के साथ, क्योंकि हम अगर कौमी सतह पे, अब जैसे सरकार के अंदर या स्टेट के अंदर उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है, कल सानी हमारे साथ शो में थी और एहसास प्रोग्राम को हम डिस्कस कर रहे थे, कर्जे दिए नहीं जाते मेरिट के ऊपर, दिए जाते हैं तो वापस नहीं मिलते, स्टेट लॉस हो जाता है, उल्टा डेफिसिट में हम लोग चले जाते हैं। तो ऐसा कोई कामयाब मॉडल हर किसी के लिए स्टेट सतह पे क्यों? हर चीज़ को हम रियासती अदारों के हवाले क्यों करते हैं? क्यों? ये अगर एक सिविल सोसाइटी काम कर रही है तो करने दीजिए। देखें, एक 3 पिलर्स हैं किसी भी समाज के, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड सिविल सोसाइटी। ठीक, पब्लिक सेक्टर जो कर रही है वो करते चले जाएं। वो सड़कें बनाती है, वो सिक्योरिटी का इंतज़ाम करती है, वो बड़ी आला तालीम के लिए काम करती है, सेहत के लिए काम करती है, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए काम करती है, टैक्सेशन, बैंकिंग, बहुत सारे काम हैं। पब्लिक सेक्टर के मुकाबले में प्राइवेट सेक्टर जॉब्स क्रिएट करता है, कारोबार होता है। फिर इसी तरीके से सिविल सोसाइटी भी तो है ना, जो लोग गैर सरकारी हैसियत में अपने हिस्से की खुशियां बांटना चाहते हैं, कोई स्कूल बनाता है, कोई अस्पताल बनाता है, कोई साफ़ पानी का बंदोबस्त करता है। तो हम भी कौमी सतह का अदारा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम पूरे पाकिस्तान में काम करते हैं, हम फाटा में भी काम करते हैं, हम AJK में काम करते हैं, 4 सूबों में काम करते हैं, 350 शहरों में काम करते हैं। This is the power of an idea and this is the power of the unity of the people of Pakistan. तो कोई भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत को चाहिए कि फैसिलिटेट करे। सही, हुकूमत, हम लोग हुकूमत के काम को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सप्लीमेंट करते हैं। वी कांट रिप्लेस स्टेट, बिल्कुल, लेकिन हम स्टेट के साथ मिलके स्टेट का जो एजेंडा है पॉवर्टी एलिविएशन का, स्टेट के जो असल मंजिल है रियासत की, उसमें हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अदारे होने चाहिए जो ये काम कर। सर, हमें बस एक ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद आते हैं, बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अमजद साकिब साहब, हुमायूं जमशेद साहब, मौलाना इमरान बशीर और वकार अहमद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं जो आज के मौजू के हवाले से भी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। और अब हमने जिस सेगमेंट का शुरू में आपसे जिक्र किया था, एक सिलसिला है जो हमने आज से शुरू करना है, चूँकि हुमायूं जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी ट्रांसमिशन को खैर रमज़ान को ज्वाइन कर चुके हैं। तो दीन की बात इस सिलसिले का नाम है और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पर कोई बहुत ही अच्छा मौजू यकीनी तौर पर आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस वक्त हुमायूं जुनैद भाई रेडी हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। हुमायूं जुनैद भाई प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आज कुछ खैर की बात करते हैं, और रमज़ान के महीने में खैर की बात करना और आसान हो जाता है, क्योंकि हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो सरकश शयातीन है उनको कैद कर दिया जाता है। और ये बातें सारी वो हैं जो हम सब के लिए हैं। मैं ख़ास तौर पे मेरे लिए, क्योंकि मेरे अपने कान सुन रहे हैं, मेरे अपने दिल में उतरती है, और मेरी जुस्तजू ये है कि मेरे अपने अमल में आए। देखो यार, हम में से कौन ये नहीं चाहता कि हमसे मोहब्बत की जाए, लोग हमारी इज्जत करें, लेकिन इसके लिए सबसे आसान जो नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ये कि अच्छे इखलाक अपना लो और नरम मिजाजी को अपना लो। और यहाँ तक कहा गया कि अच्छे इखलाक जो हैं वो कामिल दीन है। जिसको अल्लाह ने नरम मिजाजी से महरूम रखा, उसको सारी खैर से महरूम रखा। देखो कितनी बड़ी बात है
کہ جس کو نرم مزاجی سے محروم رکھا اس کو ساری خیر سے محروم رکھا گیا. اور ویسے بھی یہ اللہ کی صفت ہے. نرم مزاجی احسان کا معاملہ اللہ کی ایک صفت ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی کوئی صفت کو اپنا لیں اور ہم ناکام ہو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ہم کوئی صفت کو اپنا لیں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری عزت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ سے محبت نہ کریں اگر اللہ کی آپ صفت اپنا لیں؟ شرط کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، دکھاوا اس میں بالکل شامل نہ ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہو. تو نرم مزاجی. اب دیکھیں قرآن میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ بھیج رہے ہیں فرعون کے پاس، اور فرعون کون ہے؟ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی، میں بہت اعلیٰ رب ہوں، مجھ سے بڑا رب کوئی نہیں. حضرت موسیٰ کو بھیج رہے ہیں جاؤ جا کے فرعون کو دعوت دو. اور کیا فرما رہے ہیں؟ لیکن نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. کیونکہ دیکھو نرمی سے بات جب کی جاتی ہے تو وہ بات دل میں اترتی ہے، ہم زبردستی نہیں کر سکتے. اسی لیے ہمارا دین بھی اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ حکمت سے دعوت دو. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے گورنر بن کر جا رہے ہیں، تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرما رہے ہیں؟ معاذ پہلے ان کو دعوت دینا اللہ اور رسالت کی، اللہ اور اپنے نبی کی دعوت دینا. جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، اس بات پہ جب وہ تیار ہو جائیں، پھر ان سے کہنا کہ وہ جو اللہ ہے نا، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس پہ اب آپ یقین لے کے آئے ہو، وہ اللہ ہمیں کہتے ہیں کہ دن میں 5 دفعہ نماز کو قائم کرو. اور جب وہ نماز قائم کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ان کو کہنا کہ آپ کی امت کے، ہماری امت کے جو امیر لوگ ہیں ان کے لیے زکوٰۃ اور صدقہ بھی رکھا گیا ہے. تو بڑی ترتیب سے مزاج کو دیکھ کے حکمت سے بات کرو گے، نرم مزاجی سے بات کرو گے تو انشاءاللہ تعالی کبھی بھی نقصان میں نہیں رہو گے، ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں جگہ کرو گے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر میں ذکر کرتا ہوں، اور اس لیے کرتا ہوں کہ حضرت معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریب تھے. آپ نے خود فرمایا معاذ مجھے تم سے محبت ہے. اور بہت بڑے عالم بھی تھے، دین کو بہت سمجھتے تھے، نبوت کا مزاج سمجھتے تھے. آپ کو فرما رہے ہیں ایسے زبان نکال کے، ایسے زبان پکڑی اور کہا معاذ اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دو. کم و پیش اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس زبان کی مجھے گارنٹی دے دو، خیر کی یعنی جنت کی گارنٹی لے دو. اب آپ سوچئے بتانے والی ذات کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بتا کس کو رہے ہیں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دین کی حکمت میں بہت آگے ہیں، لیکن ایسے بتا رہے ہیں جیسے بچوں کو بتایا جاتا ہے. دیکھو کیوں؟ کہ کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. ہم کہتے ہیں نا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی ڈاؤٹ نہ رہ جائے. کیونکہ جس نے اس زبان پر قابو پا لیا، جس نے اپنے مزاج میں نرمی ڈال لی، تو یہ آپ کو آزمائے ہوئے فارمولے بتا رہا ہوں کہ آپ کی محبت، آپ کی عزت اللہ تعالیٰ اگلے کے دل میں ضرور ڈالے. اور پھر دیکھیے یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ ہمارا سیکھنے کا مہینہ بھی ہے. سیکھنے کا مہینہ کیسے ہے؟ سارے 11 مہینے ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں، تفسیر بھی پڑھتے ہیں، ہم دینی محفلوں میں بھی جاتے ہیں، علماء کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے جیسا بندہ تو گوگل پہ دین سیکھ رہا ہوتا ہے، ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. جب یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو جو کچھ آپ نے سیکھنا ہے وہ آسان اس لیے ہو جاتا ہے کہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے. کوئی تھیوری کام نہیں آتی جب تک کہ وہ عمل میں نہ ڈالی جائے. ہمارے دین کی کوئی بات اس وقت تک انسان اس پہ استقامت نہیں پا سکتا جب تک اس کو اپنے عمل میں نہیں لے کے آتا. تو رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ آتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے نا رہتی دنیا تک ایک ہدایت کا نمونہ بنا کر پیش کیا. بہت سارے انبیاء آئے، اپنی اپنی قوم پر آئے.
آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک یہ لوگوں کا اس دنیا میں آنے کا اور جنات کے آنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی ہے نہیں۔ تو آپ سوچو کہ اتنی بڑی ذات کہ جب اب نبی کوئی نہیں آنا، یہ نہیں ہونا کہ حضرت موسیٰ گئے تو پھر حضرت ہارون علیہ السلام گئے تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام آئیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نہیں 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 نہیں، ختم، فل سٹاپ۔ تو آپ سوچو کہ ایسی ہستی کو جو اخلاق اللہ نے دیے ہوں گے، سوچو ایسی ہستی نے جو تربیت صحابہ کی ہوگی، وہ کیا کی ہوگی؟ رہتی دنیا تک کے لیے وہ تربیت ہے۔ تو اگر ہم ان اچھے اخلاق کو اپنا لیں، آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنا لیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ناکام ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت، اپنی عزت نہ پیدا کر سکیں۔ تو اس میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ بھی بیٹھے تھے، تو ایک آدمی آیا اور اس نے معاذ اللہ وہ وہاں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ کو بڑا غصہ آیا، کھڑے ہوئے اس کو مارنے کے لیے۔ تو آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کہا بیٹھ جاؤ۔ اس کو منع تک نہیں فرمایا جب تک وہ فارغ نہ ہو گیا۔ جب فارغ ہو گیا تو صحابہ سے کہا جاؤ جا کے اس کو صاف کرو، اس کو بلایا اپنے پاس۔ اب اگر ہمارے ایسا کوئی بندہ ہوتا کہتا اوہ تم مسجد میں پیشاب کرتا ہے، اس کو تو نہ چھوڑو یار، اس کو تو آج ہی مار دو، افطار سے پہلے اس کا خاتمہ کر دو، اس کو اگلی سحری نہیں ملنی چاہیے۔ آپ نے بٹھایا اس کو، کہا دیکھو، بڑے پیار سے سمجھایا کہ دیکھو یہ اللہ کی عبادت کی جا ہے، یہ اللہ کی عبادت کا گھر ہے، یہاں پر گندگی نہیں پھیلاتے۔ اور اتنے پیار سے اس سے بات کی کہ جاتے وہ کہتا ہے وہ بندہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اور وہ مسلمان ہوا اور صحابہ کی لسٹ میں شامل ہو گئے۔ تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہی نرم مزاجی تھی جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اس بندے کو دین کی طرف دعوت دی۔ تو اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی عزت کریں، تو نرمی کو اپنانا بہت ضروری۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا وقت نہیں آیا، 10 سال ان کی خدمت تھی، 10 سال ان کے خادم تھے، کہا کہ ایک وقت بھی ایسا نہیں آیا کہ جب اللہ کے نبی نے مجھ سے غصے سے بات کی۔ پیار سے سمجھاتے تھے لیکن ایسے سمجھاتے تھے کہ مجھے سمجھ میں آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا وقت نہیں آیا کہ آپ نے میرے پہ ہاتھ اٹھایا ہو۔ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں اگر کوئی کسی کا نوکری کر رہا ہے تو ہم سمجھ نہیں، ہمارا غلام ہے، ہمارا سلیو ہے، ہم نے خرید لیا ہے اس کو، اس کے ساتھ جو سختی کرنی ہے کرو۔ مطلب مجھے اگر کوئی یہاں پر چھری مارے گا تو مجھے تکلیف ہوگی، اس کو نہیں ہوگی تو غلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، میری بہنوں، تمام سننے والوں، اگر ہم اس مہینے میں یہ ارادہ کر لیں کہ ہم نے آپ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے اخلاقیات کو نمونہ بنا کر اس کی پریکٹس کرنی ہے نا، تو آپ کی انفرادی تو جو زندگی ٹھیک ہوگی وہ ہوگی، یہ پورا معاشرہ، یہ پوری جو اجتماعیت ہے، آپ دیکھیے کیسے سنور کر آتی ہے۔ اگر آپ کی جنت اس دنیا میں نہ ہو، یہ ہے وہ ریاست مدینہ کا تصور جس کی ہم بات کرتے ہیں۔ تو آج کی بات یہیں روکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو میں نے کہا وہ میرے اپنے کان سنے، میرے اپنے دل میں جائے، میرے اپنے عمل میں آئے، اور امید ہے کہ میرے تمام جو بھی مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا ضرور کریے گا۔ بہت شکریہ جنید، ہمایوں جنید بھائی، آپ نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس بہت ہی زبردست موضوع کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور اس میں نہ صرف ایک عملی زندگی کے تجربات شامل ہیں بلکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ تاریخی واقعات شامل ہیں جو کہ اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم
अजमईन की अपनी ज़िंदगी की सूरत में हमारे सामने आते हैं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का वो सारा एक खुलासा आपके सामने मुख्तलिफ अफ़ाल और अक़वाल की सूरत में रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कुछ न कुछ हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी हो जाए। इस पर बात होती रहेगी। ये हमारा रोज़ का सिलसिला है। इंशाल्लाह हमायूं भाई रोज़ाना की बुनियाद पर हमसे बात करेंगे और हमारे साथ अब भी हैं, लेकिन अभी हमने ब्रेक लेंगे। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान। खुशामदीद एक बार फिर आपको खैर रमज़ान में। और दीन की बात, बहुत ही खूब बात, आपने यकीनी तौर पे उससे महसूस भी होंगे और सीखा भी होगा। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ चूँकि अमजद साकिब साहब भी हैं, मौलाना इमरान बशीर भी हैं और हमायूं भाई तो हैं ही, और वक़ार भाई भी मौजूद हैं। तो ज़रा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले कि मैं आज के मौजू जिससे हमने शुरू किया था उसकी जानिब आऊँ, मैं अमजद साहब की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए आपसे पूछना चाहता हूँ, जो हम ऑफेयर में भी डिस्कशन कर रहे थे, कि ये एक दिलचस्प बात ये है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर एक तो लोगों का आप तक पहुँचना कैसे मुमकिन होता है, चूँकि बड़े फार फलॉन्ग आबादियाँ हैं और लोगों की मसाइल भी मुख्तलिफ किस्म के हैं, और दूसरा बैंक्स के अंदर तो पूरे रिस्क मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं कि ये रिस्क कैसे बचाया जाए, कोई कर्जा ले रहा है तो हमें वापस भी करेगा और उसको हम आगे रिसाइकिल करेंगे। तो आपका ऐसा कोई डिपार्टमेंट है, आप ये कैसे करते हैं? देखिए, जानने की बात जहाँ तक है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 350 शहरों में हमारे 800 के करीब दफातर हैं, और वो कच्ची बस्तियों में जहाँ पर थोड़ी बहुत इकनॉमिक एक्टिविटी चल रही होती है तो वो वहाँ पर कायम है, इसलिए लोगों को वहाँ पर ढूंढना जाना कोई मुश्किल मसला नहीं। पिछले 20 साल से हम ये काम कर रहे हैं। सही। दूसरी बात आपने कही रिस्क की। देखिए, रिस्क आप क्रेडिट के मानी क्या हैं? क्रेडिट के जो मानी हैं, ये जो पुरानी हमारी ज़बानों में ग्रीक लैंग्वेज, क्रेडिट का मानी है ट्रस्ट, यानी क्रेडिट का आगाज़ ही ट्रस्ट से होता है। तो आज हमने क्रेडिट को रिस्क बना दिया, तो ये बुनियादी चीज़ है। और इसकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इशारा फरमाया कि मुसलमान खुशगुमान होता है, बदगुमान नहीं होता। लेकिन हमारे माशरे में मिसालें अमजद साहब इस किस्म की है ना, जी, यहाँ पे तो भाई भाई से लेके मुकर जाता है। जी बिल्कुल। देखिए, बात यह है, मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं अर्ज़ करता हूँ कि कुदरत के कुछ असूल भी समझने चाहिए। अगर आप गुलाब बोएंगे तो कांटों की फसल तो नहीं काटेंगे। तो आपकी नीयत क्या है, आप दे क्या रहे हैं, आप मतलब देखिए, ये नीयत का फल है। बिल्कुल। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर पहले दिन ही मेरी नीयत यह है कि मैंने तो इससे मुनाफा कमाना है, मैंने तो इससे सूद लेना है, मैंने तो इससे नाजायज़ चीज़ लेनी है, तो नेचुरली वो भी उसी तर्ज से ही आपको वापस करेगा। तो हमने ये देखा है कि जब आप मोहब्बत करते हैं, अखुवत करते हैं, भाईचारा करते हैं, किसी से प्यार से गुफ्तगू करते हैं। अभी कितनी खूबसूरत बात बताई जा रही थी, हमायूं साहब बता रहे थे कि आपकी ज़ुबान ही जो है वही आपकी फ़तह का बायस बनती है। तो आपकी अगर नीयत अच्छी है, हम कहते हैं, हम अखुवत में एक असूल है हमारा एहसान। एहसान का मतलब ये नहीं है कि हम नेकी कर रहे हैं, एहसान का मतलब है हुस्न। बिल्कुल। हुस्न सलूक है, हुस्न ख्याल है, हुस्न तदब्बर है, हुस्न ज़ुबान है, हुस्न गुफ्तगू है। तो ये एहसान अल्लाह ताला हुस्न पसंद करता है, तो हम भी अगर उसको पसंद करें, उसके ऊपर चलें। तो ये कुछ चीज़ें हैं बुनियादी हमारे मुआशरे की, कुछ इक़दार हैं जिनको हमने तहे तेग कर दिया। मतलब तूफ़ान मगरब ने हमसे हमारा दीन तो छीना, हमारी इक़दार भी छीन ली, तहम्मुल, बर्दाश्त, कुर्बानी, ईसार। तो फिर से अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें तो मुश्किल नहीं है। अब हमारा जो काम है, 150 अरब रुपए की रकम गई, 99.9% की शरह से वापस आई। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, ये कौन सा पाकिस्तान है? ये है असल पाकिस्तान। कि 99.9% की कोई हमारे पास स्टेट मशीनरी नहीं है, कोई थानेदार नहीं है, कोई तहसीलदार नहीं है, कोई रिस्क असेसमेंट का कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो कैसे कर लेते हैं ये? मैं तो अभी मुझे अगर मैं इसमें ऐड करूं, बड़ी अच्छी बात कर रही है साकिब भाई ने। अब आप जरा इसको गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू में देखें, कैसे एक दूसरे को फैसिलिटेट कर सकते हैं। अब देखें, गवर्नमेंट जो है पॉवर्टी एलिवेशन, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को प्रमोट करना चाहती है। जी। अब जिस सेगमेंट की बात साकिब भाई कर रहे हैं, ये एसएमई से भी नीचे का सेगमेंट, बहुत गरीब लोग। अब इन्होंने इतनी अच्छी बात कही, मुझे इतनी अच्छी लगी कि हाथ मिलाना। अब आप देखें कि गवर्नमेंट क्या करती है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड है, आप उसमें हर सालाना हर किसी को पैसे दे रहे हैं, जैसे आप किसी को तनख्वाह दे रहे हैं। जी जी जी। बट यू आर नॉट मेकिंग देम अनेबल टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। जरूरी है। देखिए, हमारे मुल्क में रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फॉर एनी काइंड ऑफ लेंडिंग। हालांकि इनकी तो लेंडिंग
आप इसमें समझिए कि नो प्रॉफिट नो लॉस वाली लैंडिंग है ना, लेकिन लैंडिंग है। अब देखिए एवरी बैंक इन आवर कंट्री वो SME लैंडिंग करता है जी। एवरी माइक्रो फाइनेंस बैंक इन आवर कंट्री वो ग्रास रूट लेवल पे लोगों को लोन देता है। उनका डिसबर्समेंट लोन का, लोन की एक वापस कलेक्शन और उसकी रिस्क मैनेजमेंट का पैटर्न वही है जिस तरह एक गांव में या विलेज में होता है। वहाँ पर इस तरह होता है, एक पंचायत में एक गांव के बड़े को बिठा लेते हैं जी, कहते हैं जी ये 10 लोग हैं, आप इनकी गारंटी लेते हैं। कहते हैं हाँ। उनके लोन होते क्या हैं? 50,000, 60,000, 70,000, इस तरह के अमाउंट्स होते हैं। ठीक है, इसको रेगुलराइज करना चाहिए और साकिब भाई जैसी ऑर्गेनाइजेशंस को से एक तो इस पे सीखना चाहिए और उनको इस तरह मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए और हेल्प आउट करना चाहिए, उनके मैकेनिज्म से फायदा उठाना चाहिए। मैं एक बात ही पूछता हूँ कि हम अगर पूछे ना माइक्रो फाइनेंस बैंक क्या, तो आप लोग कहेंगे वो जी वो बड़े टिकट साइज को लैंड करना जो है ना एक बड़ा बैंक कन्वेंशनल बैंक होता है, और छोटे टिकट साइज को लैंड करना जो होता है ना वो एक माइक्रो फाइनेंस बैंक होता है। ये खाली एक डिफरेंस नहीं चाहिए, आपको डिफरेंस ही चाहिए कि स्टेट बैंक ये अपनी पॉलिसी में डाले कि जी 10% लोन बगैर प्रॉफिट के आपने डिस्बर्स करना है। बेशक अपने आप कहीं फेंक के आ जाए, यानी कि आप इसमें वही कह रहे हैं कि स्टेट जब इंटीग्रेट करेगी तो इसके रिजल्ट्स निकलेंगे। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आप देखिए, नया पाकिस्तान हाउसिंग चल रही है जी जी जी, उसमें 7% पे 6% पे लोन मिलता है गरीब आदमी को जो 50,000 की तनख्वाह लेता है। 50,000 तो खैर गरीब नहीं होता, बड़े पैसे होते हैं जी। गरीब आदमी 25,000 रुपए की तनख्वाह वो घर तो नहीं ले सकता। बिल्कुल ठीक है। तो अब बैंक उसको 7% कैसे दे रहे हैं? गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हर साल उनको पैसे देती है कि 3% 4% तुम्हारा हो गया। बेसिकली व्हाट वी लर्न इज कि मैकेनिज्म का बड़ा फायदा होता है। तो यही काम हम इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस को लाके ये साकिब भाई के कोलैबोरेशन जो है ना, पार्टनरशिप। अगर भी आप पॉइंट ऐड कर लीजिए जो साकिब। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि माइक्रो फाइनेंसिंग में इन्होंने एक पूरा रुख और पूरी दुनिया में जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड है डॉक्टर यूनुस का, अमजद साकिब साहब का 99.9% रिकवरी, और बांग्लादेश उन्होंने उनका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है मतलब रिकवरी के हवाले से। तो बिल्कुल इन्होंने तो वो चेंज कर दिया है यानी दुनिया को इस हवाले से, और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ना लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, इन्होंने कहा कि नीयत अगर आपकी ठीक है तो इसका मतलब है सरकार में मसला सिर्फ नीयत का ही है। रिसोर्सेज तो सरकार के पास ज्यादा है इनसे, अगर रिकवरी नहीं होती तो मसला नीयत का ही आ जाता है। ये तो हदीस में भी आता है ना कि अना इंदा ज़न्न आब्दी भी, मेरे बंदे जैसे मेरे से गुमान करेंगे मैं वैसे ही फैसला करूँगा। तो हदीस के अल्फाज हदीस कुदसी है। तो इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले जो हदीस लेकर आए इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारोमदार नियतों पर है, और सबसे आखिरी जो हदीस लेकर आए कि सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। ये दो कलमे दिखने में बड़े हल्के से लग रहे हैं, ज़ुबान पे बड़े हल्के हैं, लेकिन कल क़यामत में इतने वज़नी होंगे कि इंसान के सारे गुनाहों को कम कर देंगे। तो इमाम बुखारी से पूछा कि दोनों की वजह क्या आपस में हदीसों की जोड़ने की? तो फिर मैं अगर नीयत ठीक हुई तो सुबहान अल्लाह भी अल्लाह के खजानों से बड़ा कुछ दिलवा देगा, और अगर नीयत ठीक ना हुई तो पूरी बुखारी पे अमल कर लो, पूरे कुरान पे कर लो, कुछ नहीं मिलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। अब आप चूंकि इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं, कुछ हमारा हिस्सा ही हो जाएगा। आप जो देखने वाले हैं उनसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कुछ भी कहना चाहें, बताना चाहें, और स्पेशली इस पेंडेमिक की सिचुएशन में, कोविड की। देखिए, मैं पेंडेमिक हो या मुआशी गुर्बत हो या समाजी गुर्बत हो, कोई भी गुर्बत हो, हमारा एक ही पैगाम है। हम कहते हैं कि अखुवत एक अदारा है जी, लेकिन इससे बड़ी चीज़ है एक तसव्वुर हयात, जिसे मवाख़ात कहते हैं। आप चाहें तो अखुवत अदारे के साथ मिलके इस जहाद में शामिल हो जाएं, एक शख्स को अपना बना ले, चाहे तो आप अपनी अखुवत बना लें। आप खुद से अपने किसी गरीब रिश्तेदार को कहें, किसी महल्लेदार को कहें कि मैंने तुमसे मवाख़ात मदीना की रवायत के मुताबिक दोस्ती कर ली, तो मैं अब तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता भी बताऊंगा, तुम्हें माली मदद चाहिए तो वो भी दूंगा, लेकिन दूंगा कर्ज हसन, और वापस जब लूंगा मैं अपनी जेब में नहीं डालूंगा, किसी और को दे दूंगा। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं आगे किसी को देना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये एक तसल्ली बख्श तरीके से दूं ताकि मुझे वापस मिले, तो तब भी मैं अखुवत का सहारा ले सकता हूं। आपके पास आऊं, आप 20, 25, 30, 40 हज़ार रुपए मामूली रकम है, इससे एक घराना जो है वो अपनी रोजी कमा सकता है, और वापस जब आएगा तो फिर एक और घराने को मिल जाएगा। बिल्कुल सही। यानी ये सदका जारिया, यही तो हम कहते हैं, यानी कि एक फैमिली, एक कुंबा बन जाए। एक शख्स ने मुलाकात करनी है वो खुद से कर ले, या 30-40 हज़ार रुपए की रकम ट्रस्ट के हवाले से हमारे पास दे दे, हम उसके नाम की मुलाकात कर देंगे। बहुत खूबसूरत। दिस इज हाउ वी ऑपरेट मॉडल है। आप खुद से कर लें
مل کے کر لیں. ہر شہر میں ایک اخوت بن سکتی ہے. ہر مسجد میں، مسجد کے گرد 300 400 500 لوگ رہتے ہیں، گھرانے ہیں، تو مسجد کی مسجد کمیٹی اگر یہ فیصلہ کر لے کہ ہم نے قرض حسن فنڈ بلا شبہ، اور مسجد کے حوالے سے سب کی مدد کر دیں گے. سب سے اہم یونٹ ہے ہمارا، اگر اس کو مؤثر استعمال کریں ہدایت کے لیے، فائنینسز کے لیے، تو ایک بہترین یونٹ ہے، ایک بہترین سسٹم ہے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہم نے دعا کی جانب جانا ہے کیونکہ افطار کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، تو مولانا ہمارے ساتھ چونکہ ہمایوں بھائی بھی ہیں، تو میں چاہتا ہوں دعا کر لیجیے. اور وظیفہ اگر کوئی بتانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، نہیں تو جلدی سے دعا کر لیتے ہیں. میں وظیفہ جو ہے یہ آج ہمایوں بھائی موجود ہیں تو ان کی موجودگی میں فائدہ اٹھاتے ہوئے جنید جمشید مرحوم کے ساتھ تقریباً 17-18 سال کا ساتھ رہا اور سینکڑوں پروگرام ہم نے اکٹھے مختلف چینلز پہ. راز تو نہیں کھولنے لگے نا؟ نہیں، راز نہیں. تو اس میں ابتدائی پہلی ملاقات میں نے جنید بھائی سے عرض کیا، میں نے کہا جنید بھائی مشہور ہونا اور چیز ہے، معزز ہونا اور چیز ہے. تو اتنی گاڑی اردو سمجھ نہیں آئی، تو میں نے کہا پاپولر ہونا اور ہے، کوئی رسپیکٹ کرے، دونوں میں بڑا فرق ہے. تو یا معزو، اس کو مغرب کی نماز کے بعد 41 مرتبہ والآخر درود پاک پڑھ کے اس کو ضرور پڑھے. اللہ اتنی عزتیں دیں گے کہ لوگ مثالیں دیں گے کہ اس بندے کو اللہ نے اتنا نواز دیا. تو تمام اب آپ سے درخواست کروں گا. اچھا یہ آپ نے بتایا؟ ہاں مجھے جنید نے بتایا، یہ سارے پڑھتے ہیں یار یہ والا. اچھا 41 دفعہ مغرب کے بعد یا موز. اچھا یہ عمران بشیر کا بتایا ہوا. اچھا چلیں یہ بھی آج راز کھل گیا. وقت کم ہے، میں چاہتا ہوں ذرا پلیز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے زمین و آسمان کے بنانے والے اللہ، اے ہم سے ہماری ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہماری شارک سے زیادہ قریب اللہ، اے زمین و آسمان کو قائم رکھنے والے اللہ، اے ہماری حاجتوں کو پورا کرنے والے اللہ، رات کو دن میں تبدیل کرنے والے اللہ اور دن کو رات میں تبدیل کرنے والے اللہ، عزت کو ذلت میں تبدیل کرنے والے اللہ، ذلت کو عزت میں بدلنے والے اللہ، بیماری سے شفا، شفا سے بیماری، موت سے حیات، حیات سے موت. اے اللہ تیرے آگے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کو بھی بدل دے یا اللہ. جیسے آپ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما یا اللہ. جیسے آپ کے محبوب علیہ صلاۃ والسلام کی دلی تمنا اور صحابہ اکرام نے وہ زندگی گزار کے اخوت والی بتلائی یا اللہ، آج جو اخوت کی باتیں ہوئی ہیں یا اللہ ہم سب کو، پوری امت کو اس پر آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. ایک دوسرے کے درد کو، غم کو اپنا غم سمجھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. جہاں 5 کروڑ کا اپنا محل بناتے ہیں اس کا 5% یا اللہ، یا اللہ 1%، 5%، 2%، کچھ نہ کچھ اس کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ. دوسروں کے گھروں کی بھی ہمیں فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم رب جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا، جنت میں بھی اپنے حبیب کے قدموں میں اکٹھا فرما. اے اللہ حرمین شریفین میں ہم سب کو اکٹھا فرما یا اللہ. جن بھائیوں نے، بزرگوں نے، بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. جتنے بھی ہمارے ساتھ آمین کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے یا اللہ، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. اے کریم رب جتنی خیریں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مانگی ہم سب کو پوری امت کو عطا فرما. جن شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ نصیب فرما. اے اللہ رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہے لیکن ہم گناہوں سے ابھی تک باز نہیں آئے. روزے کا مقصد تقوی ہے یا اللہ، ابھی تک نصیب نہیں ہوا. بچپن سے روزے رکھتے آ رہے ہیں، ابھی تک تقوی نصیب نہیں ہوا. اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کو تقوی نصیب فرما. اسلام کی، مسلمانوں کی ہر جگہ پر حفاظت فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم. خیر رمضان میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام کے آخری حصے میں ہم پہنچ چکے ہیں اور اس سے پہلے کہ ہم آپ سے اجازت لیں، آخر میں حافظ طاہر اشرفی صاحب کا سیگمنٹ ہوتا ہے، بالکل وہ موضوع پہ بات کریں اور آج کا موضوع آپ سنیں اور ہمیں اجازت دیں. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک اللہ حافظ. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین، رمضان المبارک آیا، اب اختتام کی طرف ہے. میں ہمیشہ یہ سوال کرتا ہوں، بہت سارے دوست کہتے ہیں کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ میں پہلے تو اپنی اصلاح چاہتا ہوں. میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ طاہر اشرفی تو نے رمضان میں کیا تبدیلی اپنے اندر پیدا کی ہے. پھر میں لوگوں سے کہوں
کہ لوگوں، میرے سننے والوں، دیکھنے والوں، آؤ رمضان کے مہینے میں تھوڑا سا تو بدل جائے، تھوڑا جھوٹ چھوڑنے کی کوشش کریں، تھوڑی غیبت چھوڑنے کی کوشش کریں، تھوڑا اپنے آپ کی اصلاح کی کوشش کریں، سود سے دور ہو جائیں اور اپنے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ اس دنیاوی جھنجھٹ میں اس کے پیچھے بھاگتے 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 ایک اندھیرے گڑھے میں انسان گر جاتا ہے اور اس کے بعد کہانی ختم۔ یہ سوال پتہ نہیں آپ میں سے کبھی کسی نے اپنی اولاد سے پوچھا ہے کہ نہیں پوچھا، لیکن آج ضرور پوچھئے گا کہ کیا انہیں نماز جنازہ آتی ہے؟ جب باپ یا ماں کا لاشا سامنے پڑا ہو اور بیٹے کو نماز جنازہ بھی نہ آتی ہو، لیکن باپ نے بہت بڑی جائیداد چھوڑی ہو، بڑی لیگسی چھوڑی ہو، بڑا کچھ چھوڑا ہو، اور اس کی تعلیم کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہو، اس کے کاروبار کے لیے کیا کچھ کیا ہو، اور وہ جنازہ بھی نہ ماں باپ کا پڑھ سکے، تو یہ سوال تو پھر ماں باپ سے بھی کرنا بنتا ہے، اور اس اولاد سے بھی جس کے لیے سارا کچھ کیا لیکن اسے اتنا نہیں بتا سکے کہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو ہمارے لیے دعا کیسے کرنی ہے۔ ہمیں یہ فکر تو ضرور لاحق ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ٹائم پہ سکول چلا جائے، جانا چاہیے۔ تعلیم انسان کا زیور ہے، تعلیم حاصل کرنا فرض ہے، لیکن یہ کبھی فکر لائق ہوئی کہ جو قرآن ضابطہ حیات ہے میری زندگی کا، میرے بچوں کی زندگی کا، اسے اس کی طرف بھی تھوڑا سا متوجہ کر لوں۔ اگر میں نے اسے 6:30 یا 6 یا 5 بجے اسکول کے لیے اٹھایا ہے تو میں اسے 10 منٹ پہلے اٹھا کے اسے کہوں کہ بیٹا قرآن کا ایک صفحہ پڑھتے چلے جاؤ۔ آئیے عزم کر لیں، اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں۔ وعدہ تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر سکتے ہیں، ارادہ تو کر لیں کہ مالک تیری کتاب، وہ کتاب جس کو صرف سننا والا جو ہے اس پر بھی اللہ رحم کر دیتے ہیں۔ کہا قرآن جب پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، صرف اس کو سن لو اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر سننے پر، صرف سننے پر رحم ہے تو پڑھنے پر کیا ہوگا؟ ناظرین، آج میں پڑھ رہا تھا انسانوں کے حقوق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کی تقسیم اس طرح ارشاد فرمائی کہ الجیران ثلاثہ، 3 طرح کے پڑوسی۔ ایک وہ ہے جس کا ایک حق ہے، لہو حق واحد۔ ایک وہ ہے وجار لہو حقان، ایک وہ ہے جس کے لیے 2 حق ہیں۔ اور تیسرا وجار لہو ثلاثہ، ایک پڑوسی وہ ہے جس کے 3 حق ہیں۔ فالجار الذی لہو ثلاثۃ الحقوق، جس کے 3 حق ہے وہ پڑوسی کون ہے؟ کہ وہ آپ کا مسلمان ہمسایہ ہے، مسلمان ہے۔ اس کا پہلا حق مسلمان ہونے کی وجہ سے آپ پر ہے، دوسرا حق رشتہ دار ہونے کی وجہ سے کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور تیسرا حق پڑوسی ہونے کی وجہ سے، وہ ہمسایہ جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں اور وہ مسلمان ہے اور آپ کا ہمسایگی کا حق ہے۔ پہلا ہمسایہ کون ہے؟ کہ جو مسلمان ہے، آپ کا رشتہ دار ہے اور آپ کا پڑوسی ہے۔ دوسرا مسلمان ہے اور آپ کا پڑوسی ہے۔ کب تیسرا پڑوسی وہ ہے کہ جو ہے تو مشرک، اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہے، اللہ کی توحید کا قائل نہیں ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور رسالت کا ماننے والا نہیں ہے، آخرت کے دن کا ماننے والا نہیں ہے، فرشتوں کا ماننے والا نہیں ہے، قرآن کریم کو کتاب اللہ ماننے والا نہیں ہے، لیکن ہے تمہارا پڑوسی، اس کا بھی حق ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں اور رمضان المبارک کے ان لمحات میں سب کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی اس وبا سے پوری انسانیت کو نجات دے دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔